बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिलसिले की आज एक नई वीडियो आपके सामने पेश खिदमत है। तो आज जो चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं, हमारे पास एडजेक्टिव इसमें सिर्फ इसे प्रोनाउंसिएशन इसकी एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसमें सिर्फ अ वर्ड naming an attribute, a word naming an attribute of a noun or pronoun, of a noun or pronoun is called adjective। यानी कि वो इसमें सिर्फ वो ऐसी सिफ्त है, वो इसम है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खामी या खूबी को डिस्कस करे, इसकी खामी या खूबी को का जाहिर करे, उसको बताए, उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करे, हम उसे क्या कहेंगे? ये है एडजेक्टिव। अब फॉर एग्जांपल स्वीट, रेड, क्लियर? और ये एडजेक्टिव यूजुअली these are used before a noun or a pronoun. It describes a noun or pronoun. Like what kind of noun or pronoun is, which is, how many or how much। The adjectives in question में से या तो what kind का आंसर करेंगे आपको, which, how many or how much। Clear? Look at the examples। Shazia is a clever girl। Shazia is a clever girl। What kind of girl is Shazia? Mean clever. It is telling what kind। And second example, she did not like that boy। So she did not like that boy। So here what kind of boy? That boy। Which boy? Is telling you about which boy। He gave me 100 rupees। He gave me 100 rupees। So how many? 100। So 100 is also an adjective। Next one, there is little water in the jug। So he is telling you how much। Yes, it gives the meaning of how much। It gives the meaning of how much। So there is little water in the jug। We can say that how much। So once again, an adjective is a word which gives the meaning, the naming and attribute of a noun or pronoun। So one thing more, one adjective can be used, so in a sentence or before a noun there can be used more than one adjective। Is it clear? He is smart, clever, intelligent and an outstanding student। ये एक सेंटेंस के अंदर आपने 3 से 4 एडजेक्टिव्स जो है वो यूज कर दिए हैं। सो इज इट क्लियर? ओके। सो एडजेक्टिव्स, नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। Adjective of quality, its other name is descriptive adjective। It shows kind or quality of noun or pronoun। For example, look, he is an honest man। इसमें honest इसकी क्वालिटी को शो कर रहा है कि how many, what kind of person he is। He is an honest man। He is a dishonest traitor। So dishonest and honest are the kinds of adjectives and adjective of quality। They are showing the quality of these three men। Is it clear? Okay। Next is adjective of quantity। Adjective of quantity, which tells you how much thing is। She ate some rice। Look at, she ate some rice। You have
no sense, you have no sense, she ate some rice. In these examples, इन मिसालों में जो क्वांटिटी है वो ये शो हो रही है, some और no. Next is adjective of numbers, numeral adjectives. Again, look at the example. Few cats like cold water. Few cats like cold water. The hand has 5 fingers. Look at few and 5 are the adjective of numbers. So these are showing representing numbers. Look at few cats and 5 fingers. इस थर्ड काइंड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. तो एडजेक्टिव्स की जो तीसरी सिर्फ किस्म है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. उनके मजीद 3 कैटेगरीज हैं. नंबर 1, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, जिनको डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं. इट डिनोट्स एग्जैक्ट नंबर. ये आपको एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताते हैं. कैसे? जैसे 1 2 3 4 5 6. आई हैव 10 बिस्किट्स. आई हैव 1 स्टिक. सो ये 10 और 1 ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं. न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं. न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं. जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. और ये 1 2 3 अगर यूज करें तो इनको क्या कहते हैं? कार्डिनल्स. क्या बोलते हैं? कार्डिनल्स. और अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो इनको ऑर्डिनल्स नंबर बोलते हैं, जो आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं. ठीक हो गया? तो इसका नाम क्या हुआ? कौन? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव. समझ आ गई बात की? ओके. उसके बाद है इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. क्या है? इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. लाइक all boys in the class. all हो गया. no one in the class. no हो गया. many boys of your class. many हो गया. few boys in the class. right? इसी तरह से some boys from among you. anyone, any, certain, several and sundry. ये तमाम के फॉर्म जब यूज होते हैं एज अ एडजेक्टिव तो ये किस फॉर्म में कैटेगरी में आते हैं? इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. देन उसके बाद इसकी थर्ड कैटेगरी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स. कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स. इसी में से ईच और एवरी, यानी ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न. ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न. every word of it is false. उसका कहा गया हर एक लफ्ज गलत है. सो ईच एंड एवरी जब यूज होते हैं बिफोर नाउन तो ये क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव. क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव. और इन एडजेक्टिव्स को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स. देन नेक्स्ट इसके है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या है? कि ये पॉइंट आउट व्हिच पर्सन और थिंग इज मेंट. ये आपको बताते हैं कि किस पर्सन या किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं. आपका मतलब कहने का क्या है? लुक, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हामिद. दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हामिद. तो इसके अंदर जो दिस है ये बॉय नाउन है. इससे पहले जो यूज हुआ है इसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. This boy is stronger than Hamid. इसी तरह से that boy is industrious. That again demonstrative. आपने ये demonstrative pronoun में भी पढ़ रखे हैं. Demonstrative pronouns. So ये demonstrative as an adjectives भी हैं कि ये इस noun से पहले यूज हो रहे हैं. That boy is industrious. Industrious means मेहनती, hard worker. इसी तरह से these mangoes are not sour. clear? so इसी तरह से these and don't be in such a hurry. इतने जल्दी में मत हो.
ठीक है, डोंट बी इन सच अ हरी, दोज बॉयज मस्ट बी पनिश्ड। लिहाजा इन ये तमाम की तमाम अल्फाज जो ये दैट, दिस, दैट, दोज, these and such, they are called demonstrative adjective. Is it clear? Yes, sir. Okay, next is interrogative adjectives. These are the words like which, whom, who, how, but these are used with nouns to ask question. When these are used with noun to ask questions like what manner. When we see what is this, here it is interrogative pronoun, but here what manner of man is he. So जब हम इस तरह से यूज करते हैं इसको, तो ये क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या बनता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। whose books are these, whose books are those, whatever. So whose books, it is now becoming interrogative adjective। वरना हम यू भी कहते हैं, who are you, ठीक है, who are you। so again यहां पे क्या है, ये दोनों एज एन इंट्रोगेटिव, नो, यहां ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रोनाउंस है, यस प्रोनाउंस, ये यहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, लेकिन यहां व्हाट और हुज जो है ये क्या है, इंट्रोगेटिव्स एडजेक्टिव्स। इज इट क्लियर? सो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यही वर्ड्स अगर किसी नाउन से पहले यूज होते हैं तो फिर ये बनते हैं एडजेक्टिव टू आस्क द क्वेश्चन। लेकिन अगर ये सिंपल यूज होते हैं आस्क द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन मार्क इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, डिफरेंस इज देयर कि यहां आपको क्या नहीं मिल रहा, नाउन नहीं है, नाउन नहीं है, या फिर ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। यहां क्योंकि ये मैन और बुक्स यहां नाउन्स मौजूद है तो ये बन जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन। ओके, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। There are 3 degrees of adjectives. Number 1, positive, like small. He is a small boy. Clear? Yes. Comparative, small, smaller. Superlative, smallest. So what is the difference? The difference is of their use. When we talk about single noun, or single, or then we say small. As I say, he is a small boy. He is a small boy. He is a good boy. He is a clever boy. He is a beautiful or handsome boy. So जब हम अकेले एक नाउन की बात कर रहे होते हैं तो उससे जो डिग्री यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? पॉजिटिव। लेकिन जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज तब करते हैं जब हम एक के बजाय 2 के बारे में बात कर रहे होते हैं। इफ आई से Ahmad is not better than Soban, or I say Soban is more beautiful than his brother. Look at these both examples. Soban and Ahmad are being compared. Soban and his brother are being compared. So इसमें देखें, instead of using good, हमने क्या यूज किया है? Better. Instead of using beautiful, we have used more beautiful.
Clear? Ahmad is not better than Soban. Soban is more beautiful than his brother. Look, लेकिन हर दोनों सेंटेंसेस में, हर सूरत में कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आ गया? देन. क्या आ गया? देन. इनमें चंद कंपैरेटिव डिग्रीज ऐसी हैं जिनके बाद देन की बजाय टू यूज होता है. फॉर एग्जांपल देखिए, सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, ये चंद एक ऐसे अल्फाज हैं इनके बाद देन की बजाय क्या यूज होता है? टू यूज होता है. देन की बजाय टू यूज हो सकता है. हम कह सकते हैं अली इज जूनियर टू मी, नॉट देन. मुस्लिम्स आर सुपीरियर देन हिंदूज, यू कैन से. क्लियर? तो जब हम ये दो नेशंस को हमने कंपेयर किया, मुस्लिम्स एंड हिंदूज को, तो फिर हमने उसके साथ आगे देन यूज नहीं किया बल्कि टू यूज किया. अब देखा अहमद इज नॉट बेटर देन, सोबान इज मोर ब्यूटीफुल देन, तो इसके बाद देन यूज हुआ. इज इट क्लियर? बात समझ आ गई आपको? ठीक हो गया. अब नेक्स्ट देखिए, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स तब यूज होते हैं जब आप दो से भी ज्यादा चीजों को कंपेयर करते हैं. हम दो से भी ज्यादा चीजों को कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, एहतिशाम is the tallest boy in his class. Syam is the most beautiful boy of his class. Look at these examples. Here Hisham is being compared all the boys of his class. Here Syam is being compared all the boys of his class. Look, tallest, tall, taller, tallest. Here beautiful, more beautiful, most beautiful. So मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सुपरलेटिव डिग्री, और यहां पे टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है. अलबत्ता इससे पहले जैसे कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम क्या यूज करते हैं? देन या कुछ में टू. इसी तरह से इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज करते हैं? दी या द यूज करते हैं. यस, बट डिफरेंस इनके अंदर दो टाइप्स के एडजेक्टिव्स हैं. एक है रेगुलर एडजेक्टिव्स. रेगुलर एडजेक्टिव्स सेम है जैसे रेगुलर हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं, और एक होते हैं इर्रेगुलर. इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कि वो तमाम के तमाम जो ER और EST से मिलकर बनते हैं. जैसे अभी आपने देखा स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. इसी तरह से क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. सो ये ER और EST से क्या है? मिलकर बने हैं. इनको हम कहते हैं रेगुलर. इन्हें हम क्या कहते हैं? नाइसर, नाइसेस्ट. ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. बोल्ड, बोल्डर, boldest. All these are regular form of adjectives. इनकी जितनी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बन रही हैं वो रिप्लेसिंग, एडिंग ER और EST के तौर पर बन रही हैं. ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है. कुछ ऐसे भी हैं जैसे ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट. यहां Y को हटा के IES, IER और IES. ड्रायर, ड्राइएस्ट. अर्ली, अर्लियर, अर्लीएस्ट. ये सारे Y को रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ? IER और IEST के साथ ही.
इज इट क्लियर? बाकी जो है कुछ इर्रेगुलर है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें गुड, बेटर, बेस्ट, एक बेहतरीन मिसाल, गुड, बेटर, बेस्ट। इसी तरह से हमारे पास है बैड, वर्स, वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। इसी तरह से लिटिल, लेस, लेस मीन लीस्ट, फॉर, फार्दर, फॉरदेस्ट। वो ई आर और ई एस टी की कैटेगरी से थोड़ा सा हटकर है। सो कुछ के साथ जो मोर और मोस्ट यूज होते हैं वो थोड़ा सा फर्क है कि वो तमाम के तमाम एडजेक्टिव्स जो सिंगल सिलेबल, जिनके अंदर सिंगल सिलेबल मौजूद है, क्या सिंगल सिलेबल, वो तो यूज होते हैं ई आर और ई एस टी के साथ। लेकिन जो मोर देन सिंगल सिलेबस, जैसे ब्यूटीफुल में 3 सिलेबस मौजूद है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, मोर और मोस्ट। इसलिए मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। लुक एट इंटेलिजेंट, 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 3 सिलेबस है इसमें भी। सो यहां पे क्या, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। क्लियर? अदरवाइज क्विक, सिंगल सिलेबल है, क्विकर, क्विकेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। इन सब के अंदर क्या है, क्योंकि ये सिंगल सिलेबल है, लिहाजा इसके साथ हम ई आर और ई एस टी लगाकर इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। होप स्टूडेंट्स आज का लेसन काफी इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए और आप इंशाल्लाह इससे काफी लर्न करेंगे।